Are there any new words that I tried and then noted it down from the dictionary? That is what contextual learning is about, right? So, any new words while reading? So, first you try guessing the meaning and then you refer to the dictionary, right? So, these simple things actually make us very strong in RC. Got it? So, let me share a small paragraph from a very old cat passage. I just took it as a sample. I would like all of you to read it, uh, write down the central idea, and if you get stuck in any word, try to guess the meaning of that word, and then eventually use the dictionary if you have to. Okay? So it will be a very simple exercise. I will give you 4 to 5 minutes. That's it. है ना? And then I will once discuss, right? Rather re-emphasize uh, what to do when I say read a paragraph daily at least. What does that mean? How to make that effective and efficient at the same time. Okay. So just a minute. Let me share that one paragraph with you. एक बार सो ऑल यू नीड टू डू इज ये पैराग्राफ पढ़ के सेंट्रल आइडिया लिखना है और कोई वर्ड मीनिंग में क्लियर नहीं होगा तो गेस करना नहीं तो डिक्शनरी रेफर करना एक बार थम्स अप दे दो आर बी क्लियर विद द फर्स्ट एक्टिविटी एवरीवन छोटा सा एक्टिविटी है बट अभी ये बुक करने कह रहे हैं डेली रीडिंग करनी है इट्स काइंड ऑफ आई एम यूजिंग इट टू री एम्फेसाइज what can one paragraph teach us on a daily basis. Okay, all right, so just a minute, check karo did you get a PDF मिला ठीक है thanks sure thanks everyone ठीक है I'm giving you 4 to 5 minutes just spend that time with this para okay and थीम लिखो कोई वर्ड मीनिंग देखना है देखो टाइम स्पेंड करो 4-5 मिनट बाद ही डिस्कशन स्टार्ट होगा ठीक ओके
ऑलराइट, मुस्कान, खुशी, अमीशा, शोएब, एक दो लोग थम्स अप दे दो। आर वी बैक? तुषार, रीडिंग डन। हर्षिता, अमन, ओके, ऑलराइट एवरीवन, okay, now see, uh, let me share my screen with you. Listen carefully to the point I'm trying to make. It's not just about this passage. What I'm saying is, every day when an article comes on the reading club, or every day when you, let's say, read a chapter from that ebook, right? Uh, every paragraph is serving a particular purpose. Okay, I'll repeat. One, you are mastering theme based reading. Two, you are contextually learning words. Remember these two things. Okay, ये दो चीज आपको बहुत ज्यादा स्कोर करने में हेल्प करेगी कैट में, है ना? एंड ये दोनों चीजें ऐसी है ना, विच आई कैन प्रोवाइड यू मटेरियल, आई कैन गाइड यू, बट करना आपको ही है ना? बिकॉज ये डेली करने की चीज है। वीक में 4-5 बार तो कम से कम होना चाहिए, इतना रेगुलरिटी लाने का है। ठीक है, नाउ लेट मी रन यू थ्रू uh, what I would have done with this paragraph, and then I'll ask you in chat कि कितना लोग का similar था या understood or not. Okay, so let's read it first. See, while reading, keep the objective in mind. पढ़ के बताना है कि क्या पढ़े. That is what theme based reading is. Read and tell what did you read. So, if translated in English, most of the ways economists talk among themselves would sound plausible enough to poets, journalists, and others, other thoughtful, though non-economical folk. Okay, so plausible. Uh, some people might find it maybe not knowing the meaning of the word. So पॉसिबल क्या हो सकता है भाई, है ना? तो तुम कुछ ट्राई किए, गेस किए कि अच्छा पॉसिबल, या कुछ और तुम ट्राई किए, नहीं समझ में आया तो तुम डिक्शनरी से देख के लिखे। समझे? दैट इज व्हाट कंटेक्चुअल वर्ड लर्निंग इज, सेंटेंस के यूसेज में वर्ड लर्न करना। लाइक सीरियस टॉक एनीवेयर अमंग बोर्ड डिजाइनर्स एंड बेसबॉल फैन, टॉक इज हार्ड टू फॉलो when one has not made a habit of listening for it to a while, right? Okay, मतलब ये है ना कि बेसिकली किसी एक जॉनर का टॉक हो रहा है, एक तरह का टॉक हो रहा है, तो दूसरे लोग को समझने में थोड़ा कठिन हो सकता है। ओके, द कल्चर ऑफ कन्वर्सेशन मेक्स द वर्ड्स आर्केन। ओके, तो मतलब जिस कल्चर ऑफ कन्वर्सेशन का ना क्या मतलब हुआ, जो लोग ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो लोग बिलोंग करते हैं ना उस सर्कल में, तो वो जो डिस्कशन है उसको आर्केन बना देता है। तो व्हाट डज आर्केन मीन? देखो, आर्केन मैंने यहाँ पे चेक किया, आर्केन का मतलब होता है, अगर तुम्हें पहले तुम गेस करो, हो सकता है आर्केन मतलब तुमको गेस करके लगे कि नॉट क्लियर, है ना? बेसिकली समथिंग लाइक अ सीक्रेटिव और मिस्टीरियस, राइट? तो ये आप वर्ड्स साथ साथ लर्न करें ऐसे, और गेस करके समझने की कोशिश करके डिक्शनरी से एग्जैक्ट भी लिखें। ओके, बट द पीपल इन अनफेमिलियर कंडीशन कन्वर्सेशन आर नॉट मार्शियन। अब ये बट कॉन्ट्राडिक्शन से समझो, लेकिन अनफेमिलियर लोग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं समझ पाए, नॉट मार्शियंस मतलब, अब सोचो जो मतलब इसका मतलब कॉमन सेंस से क्या आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, राइट? तो अब इसको वर्ड का मीनिंग एग्जैक्ट देखो, तो क्या लिखता है? एलियंस। तो एलियन टू समथिंग का क्या मतलब होता है? एलियन टू समथिंग का मतलब एकदम आउट ऑफ दैट प्लेस, राइट? ओके, तो पीपल आर नॉट एलियंस, मतलब होता क्या है कि अगर कोई लोग एक कल्चर या एक टाइप का थिंग में बिलोंग करते हैं, तो उनका जब डिस्कशन चल रहा होता है वो बेटर समझेंगे, है ना? और उनके बात करने के तरीके से हो सकता है दूसरे अनफेमिलियर लोगों को थोड़ा कठिन लगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी लोग एकदम एलियन होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिस्ट लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग को समझ ही नहीं आएगा, है ना? या कोई फुटबॉल लवर्स बात कर रहे हैं तो हम लोग को समझ ही नहीं आएगा, राइट? आगे देखते हैं, अंडरनीथ इट ऑल, है ना, कन्वर्सेशनल हैबिट्स आर सिमिलर। ओके, क्योंकि लोग बात तो उसी तरीके से करेंगे, मॉडल्स यूज करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स यूज करेंगे, बट अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, है ना? तो अल्टीमेटली व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज? सेंट्रल आइडिया, मतलब अगर मैं ऐसा आई कैन से इज कि यूनिक ग्रुप conversations, right, might appear tough for unfamiliar people but can be understood। मतलब इसी टाइप का टोन है ना, मैंने एक तरह से ऑथर यही कहना चाह रहा है ना कि किसी अलग अलग टाइप के ग्रुप का कन्वर्सेशन समझना कठिन हो सकता है, लेकिन मेहनत करोगे तो समझ में आ जाएगा, राइट? ओके, अब जरा इसको रोकते हैं, है ना? देखो, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना गाइस, है ना,
हाँ, तो दीपक जो तुम कह रहे हो ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमिक्स, इट इज ऑल्सो अबाउट, इट इज द होल थीम ऑफ द पैसेज, है ना? इट्स अबाउट एनी काइंड ऑफ पीपल, इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट, बट इट्स ओके, है ना? मोर और लेस सेंट्रल आइडिया आगे पीछे हो सकता है, बट एक बार गाइस, एक राउंड थम्स अप दो अगर समझ रहे हो कि करना क्या है। वीआरसी में एकदम टॉप 100% मार्क्स लाया जा सकता है, लेकिन ये डेली हैबिट बहुत जरूरी है। Still, every day, even if you feel that your English is very good or you have a lot of practice, doesn't matter. Theme based reading, every paragraph serves a purpose. Read it and tell what did you read, right? Try to learn words every time you read, है ना? Follow these activities, है ना? This ये रेगुलर करने से ना रिजल्ट बहुत अच्छा आता है. This has been one of the main contributors to overall बी फैक्ट्री सक्सेस स्टोरीज एज वेल, है ना? क्योंकि बच्चे हम लोग इंग्लिश इतना पढ़ने बोलते हैं, लोग इंग्लिश पढ़ने से, सही तरीके से पढ़ने से ऑटोमेटिकली स्कोर बढ़ जाता है कैट में, राइट? तो डोंट इग्नोर दिस, है ना? बिकॉज वी कैन ओनली सी कि तुम क्लास में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, घर पे आप रीडिंग कर रहे हो कि नहीं, ये आपको इंश्योर करना है, ठीक है? आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि कंसिस्टेंटली whenever you read a paragraph, follow the kind of thinking which we just went through. All right? Okay. Chalo. So on that note, let's proceed to the more direct agenda for today's class. See, आज हम लोग डायरेक्ट क्वेरी बेस्ड क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना? इनडायरेक्ट वाले आज नहीं कर रहे. Articles are very relevant to CAT, है ना? What you have to do, I'll give you two sheets, ठीक है ना? Uh, इनको आप आरसी को थीम बेस्ड रीड करेंगे, ठीक? डोंट वेरी मच फोकस ऑन ट्राइंग अंडरस्टैंड, देखो, don't try to get into very a lot of meaning of words and why the author is saying something. Try to just capture the flow while reading. ऐसे सोचना होता है कि every paragraph is serving what purpose. फ्लो ऑफ द पैसेज पकड़ना जरूरी होता है, ठीक है? कि अच्छा, पहला पैराग्राफ ऑथर क्यों लिखा, दूसरा क्यों लिखा, तीसरा क्यों लिखा, ऐसे सोच के रीड करना, ठीक है? तो पूरा पैसेज कैप्चर हो जाता है, ठीक? ट्राई डूइंग दैट. तो आई विल शेयर टू शीट्स, है ना? एंड आई विल गिव यू अ टोटल ऑफ 25 minutes टू ट्राई, ओके? एंड उसके बाद हम लोग आई डू अ फुल राउंड सॉल्विंग, फिर आज का ये प्रैक्टिस कंप्लीट होगा, ठीक? तो एक बार अगेन एक राउंड थम्स अप दे दो इफ यू आर क्लियर. दो सेट भेजेंगे एकदम कैट टाइप का, अच्छे से उसको पढ़ के, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, अटेम्प्ट करने का है, फिर मैं सोल्यूशन डिस्कस करूंगा, ठीक है? ऑलराइट, गिव मी अ मिनट. हाँ, गॉट द शीट्स, चेक करो एक बार. ओके, सो 10:53, 10:54 by my watch, 11:20 approx, 11:19, विल स्टार्ट द डिस्कशन. एक बार अच्छे से रीड कीजिए और एंजॉय करिए रीडिंग को, फ्लो को पकड़िए और आंसर से अकाउंट मार्क कीजिए, ठीक है? इट्स अ प्रैक्टिस सेशन. आई विल सी यू एट 11:19. ऑलराइट, सो कोई भी एक दो जन
थम्स अप दे दो. इज द डॉक्यूमेंट विजिबल? ओके, ठीक है. तो आई गो थ्रू फर्स्ट आरसी देन द सेकंड वन. तो एक आरसी के बाद आई आस्क यू ऑल क्लियर या कितना सही हुआ. तो विल डिस्कस दैट इन द एंड. एक बार लेट्स गो थ्रू इट, है ना. My objective here is just not to give the answers, but also to run you through the same process, which we need to keep in mind. है ना? Remember, RC solving is always a three-step process. Step number one, theme-based reading. Step number two, understanding the question demand. है ना? Understanding the question demand. पूछ क्या रहा है? And step three, elimination of options. Right? And then you get to the right answer. Okay? Uh, is it visible, guys? If it is visible, then there is no problem. किसी को भी दिख रहा है मतलब मेरे end से I cannot change. It is visible. अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो चेक करो अपने end पे connection and all. यहाँ से visible है मतलब I cannot change. काफी लोग को दिख रहा है तो let's start. Okay. To teach, अगर बाई चांस किसी को नहीं भी दिख रहा ना तो अपना वो पीडीएफ देखो. सेम चीज को मैं गो थ्रू कर रहा हूँ. To teach is to create a space in which obedience to truth is practiced. Space may sound like a poetic metaphor, analogy, unless we realize that it describes experiences of everyday life. We know खुले जगह में रहना, ओपन फील्ड में रहने से क्या सा फील होता है, राइट. एंड कंपेयर टू दैट एक रश आवर में बस में हो तो कैसा फील होता है. Experiences of physical space have parallels in our relations with others, right? Uh, in our job, at times we are very crowded, very pressed, urgencies hai, but there are times when people are cooperating and there is a lot of space and time to work, right? With family also, sometimes there is a lot of pressure and sometimes there is space, right? So फिजिकल स्पेस मतलब अराउंड में कितना भीड़ है, कितने लोग हैं, कितना नॉइज है, उसका एनालॉजी ड्रॉ किया जा रहा है कि उसका रिलेशन लाइफ में और अदर थिंग्स से कैसा होता है, राइट. सो व्हाट इज द फर्स्ट पैराग्राफ टॉकिंग अबाउट? टीचिंग स्पेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है ना. एंड मेनली ये कह रहा है कि फिजिकल स्पेस का पैरेलल्स विथ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, है ना. ओके, तो मोटा मोटी दिस इज द सेंट्रल आइडिया. ऑलराइट. सो नेक्स्ट पैराग्राफ. Similar experiences of crowding in space are found in education. In a class, if the teacher is only just telling you what to do and are not interested in your views, there is only competition for grades, then the space for learning is not there. But if there is a teacher who also listens, right, and encourages participation, right, then the learning space is really good. So, if you see what is this paragraph talking about, now it is this one properly enters into teaching space, है ना. And what does it introduce? Understand, we have to focus on what is the author doing in every paragraph. यही ऑब्जेक्टिव बेस्ड रीडिंग होता है, ठीक है. ओके, सो व्हाट अबाउट टीचिंग स्पेस, कि किस तरह का होना चाहिए, राइट, है ना. तो काइंड ऑफ इट इज, अगर इन शॉर्ट कहें तो इट शुड बी इंटरैक्टिव, है ना. तो रियल पावर ऑफ स्पेस मिलता है. नेक्स्ट देखो, लर्निंग स्पेस हैज थ्री एसेंशियल डिमेंशंस: ओपननेस, बाउंड्रीज एंड हॉस्पिटैलिटी. ओके, ओपन लर्निंग स्पेस, है ना, इसलिए होना जरूरी है ताकि हम लोग चैलेंज कर सके, ट्रूथ को फाइंड कर सकें, है ना. कई बार हम लोग नहीं चाहते ओपन होना क्योंकि फियर रहता है कि लोग क्या सोचेंगे, है ना. ओपननेस के लिए जरूरी है कि बाउंड्रीज भी रहे. इनडेफिनेट नहीं हो सकता, नहीं तो क्या हो जाएगा, है ना. तो बाउंड्रीज क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि अगर अपन ओपननेस रखें और अब इतना ओपन हो जाए कि लोग कुछ भी बात कर रहे हैं, है ना, तब तो अच्छा लर्निंग नहीं हो पाएगा ना. विद इन बाउंड्रीज ओपन होना चाहिए, दैट इज द पॉइंट, राइट. ओके, नेक्स्ट. सिंस learning can be painful and discomforting, learning space must be made hospitable. Hospitable मतलब डिस्कस करो, बात करो, बिकॉज इट्स नॉट इजी, है ना. तो उससे क्या होता है, ट्रस्ट और ऑनेस्टी आता है ना. Learning space needs to be hospitable, not to make learning painless, but to make painful things possible. Right now,
विदाउट विच नो लर्निंग कैन हैपन, है ना? आपको ओपन होना होगा। लाइक कभी होता है, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि हमसे कुछ गलती हो रही है, या हम कुछ बिलीव कर रहे हैं वो सही नहीं है, या एक एक दूसरे का क्रिटिसिज्म करना, राइट? मतलब पॉइंट यहाँ पर क्या है ना, हॉस्पिटेबल होने का मतलब होता है कि बी ओपन एंड encouraging to discuss and overcome whatever kind of fears might come, because learning is not an easy process, है ना? Now this is something which I very strongly believe, है ना? ये आरसी जब मैंने पहली बार पढ़ा था, है ना, तो आई ये तुम लोग बता रहा हूँ, ये लाइन बहुत स्ट्रांग है, मतलब फॉरगेट दिस आरसी, इस लाइन को तो ट्रस्ट मी यू कैन put as your WhatsApp status or something, like, you know. I am so very impressed by this line. I'm just copy pasting here as well. Uh, doesn't this apply to your CAT prep also? I always believe this, you know. Uh, learning cannot be made painless. Learning is an effort. Pain का मतलब यहाँ पे दर्द वाला नहीं, effort, right? है ना? But and it's a competition, so there needs to be a lot of things which need to be done correctly to achieve, right? But the idea is not to believe that there will not be a struggle. There will be a struggle. I struggle to achieve. Everyone who has achieved has struggled. At the end of the day, there needs to be success. And how does that happen? Right? That is why we talk about atomic habits. है ना? Atomic habits क्या होता है? Do things, right things every day. A little bit of practice, a little bit of revision, regular classes, right? Uh, Reading in the right way. समझ में आ रहा है? क्योंकि वो लर्निंग पेनलेस नहीं बना सकते अपन, वो पेन के बिना सक्सेस आएगा नहीं, लेकिन वो पेनफुल, पेनफुल यहाँ मतलब एफर्ट, एफर्ट के साथ थिंग्स पॉसिबल होती हैं। एक राउंड थम्स अप दे दो अगर ये लॉजिक समझ रहे हो, बहुत गहरी बात है ये, समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं है कि चीज ही आसान बन जाएगी, लेकिन करने से होता है। गेटिंग इट? इट्स अ वेरी नाइस लाइन, राइट? ओके, आगे देखते हैं। The task of creating learning space with qualities of openness, boundaries, hospitality can be approached at several levels. अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे अब ये तीन देखो, तो इसमें ना मैं ये बोल्ड ही कर दे रहा हूँ, लर्निंग स्पेस में तीन क्वालिटीज बताया था ना, ओपननेस, बाउंड्रीज एंड हॉस्पिटैलिटी, राइट? अब इनको कैसे अचीव करेंगे, इनका लेवल्स बता रहा है। सबसे पहला फिजिकल लेवल, ठीक है? अब यहाँ पे बता रहा है कि कैसे ऐसे अरेंज करो कि लोग इंटरेक्ट कर सकें तो बेटर है, ठीक? दूसरा देखो, कॉन्सेप्चुअल लेवल। अब मैं इसको फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ये सब तुम लोग देख ही पढ़ चुके हो ना, तो अदर इज कॉन्सेप्चुअल लेवल, है ना? मतलब लेक्चर करना, इंटरेक्शन कराना, इंफॉर्मेशन इंटरप्रिटेशन कराना, है ना? जैसे हम लोग करते हैं, जैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करना, थिंकिंग जनरेट कराना, प्रोसेस मेमोरी बिल्ड करना, है ना? इज नॉट जस्ट लेक्चरिंग। लेक्चरिंग करने से क्या होगा ना कि फिर वो स्किल डेवलप नहीं होगा, यू माइट लर्न बट यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई, है ना? ओके, तो पहला होता है फिजिकल लेवल, दूसरा होता है कंसेप्चुअल लेवल, तीसरा क्या कह रहा है भाई? लर्निंग स्पेस टू द काइंड ऑफ स्पीच वी अटर, है ना? टू द काइंड ऑफ स्पीच वी अटर, मतलब सुन रहे हैं कि नहीं, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, है ना? इसमें आगे देखो, बहुत ज्यादा बोलने से ना कई बार हम लोग के मन में जो है उसी चीज को हम लोग रीइंफोर्स करते हैं, इसीलिए केवल बोलना नहीं, सुनना भी चाहिए, है ना? ये यहाँ पर मेनली कहा गया है, क्योंकि साइलेंट रहने से ना कई बार समझ में आता है बेटर है, और हम लोग ट्रुथ से यूनाइट हो पाते हैं। तो फंडामेंटली यहाँ पे पॉइंट क्या है? इमोशनल स्पेस, है ना? मतलब अगर कहीं पे कंफ्यूजन लग रहा है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वहां पर आप सोच सके, बोल सके, ये बहुत जरूरी है ना? नहीं, अगर मैं ये आर्टिकल से बहुत कुछ बी फैक्ट्री का ना थॉट प्रोसेस जो हम लोग बनाए हैं मोटिवेटेड है, राइट? हम लोग जो पीएमपी करते हैं ना, उसका थॉट प्रोसेस यही है। अभी तो स्टार्ट में बता रहे हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आगे चल के वो हो जाता है भाई, कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो सोचो और बोलो और मिल के उसको आगे बढ़ना है। लर्निंग कैन नॉट बी मेड पेनलेस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। It's about how to make it most effective with habits so that we succeed. Right? That's what learning is about. Okay. तो तीन तरह का स्पेस का बात किया, कंसेप्चुअल, फिजिकल एंड इमोशनल स्पेस, राइट? टू गेट गुड लर्निंग स्पेस। तो फंडामेंटली इफ वी सी, पैसेज किस चीज के बारे में? पैसेज इज अबाउट व्हाट्स यू नो स्पेस कैन मीन इन डिफरेंट प्लेसेस, एंड टीचिंग स्पेस कैसे क्रिएट करना चाहिए, राइट? दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। फास्ट चलेंगे, एक बार देखते जाओ, एक्सप्लेन करते जाएंगे, लास्ट में चैट में पूछूंगा किसको कितना समझ में आया। किस ज्यादा लेवल किसमें कुछ है नहीं, अगर टफ नहीं है। अगर किसी का कुछ भी गड़बड़ हुआ ना और डाउट लगेगा, रीडू करने का इसको, है ना? हमेशा आरसी में अगर कहीं भी अटक रहे हैं ना तो रीडू करना है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1,
The task of creating learning space with openness, boundaries, and hospitalities is multidimensional. What levels? डायरेक्ट दिया है ना? अगर मैं ध्यान से पैसेज के हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल गिवन ही नहीं है, परसेप्चुअल बिहेवियर ये सब गिवन ही नहीं है ना? वर्बल एंड सेंसिटिव गिवन ही नहीं है, तो आंसर इज सी. ओके, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, हम लोग ओवरऑल प्रोसेस पे ध्यान दे रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द ऑथर. देखो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है. लर्निंग इज अ पेनफुल प्रोसेस बिकॉज इग्नोरेंस, क्रिटिसिज्म, ये मेंशन्ड है, ये सारी चीजें एक बार जाके उस पैरा में पढ़ना. 2 का आंसर इज डी. डायरेक्ट इनडायरेक्ट तुमको ये तीनों चीजें समझ में आ जाएंगी कि हाँ ये सब गिवन है. फिर से पढ़ना अगर डाउट है. अंडरस्टैंडिंग द नोशन ऑफ स्पेस इन आवर रिलेशंस विद अदर्स इज, है ना? देखो इसमें ना पढ़ के लगेगा ना कि सारा कुछ दिया हुआ है, अपार्ट फ्रॉम सी स्पिरिचुअल तो कहीं है ही नहीं. ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 इज अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, 1 और 2 आई वुड से इजी है. ठीक है, ए एंड बी लगता है कि वहां पे दिया हुआ है, बट द क्वेश्चन इज नॉट जस्ट अबाउट कि क्या ये स्पेस की बात क्यों कर रही है. ये भी लिखा है कि इट इज लाइक अ पोएटिक मेटाफर, ये भी लिखा है कि फिजिकल स्पेस से रिलेटेड होता है. बट अंडरस्टैंडिंग क्यों है, मतलब हाउ डू वी अंडरस्टैंड आवर स्पेस in relation with others, right? If you go to the para 1, it's like finding what the main reason of introducing this thought is. Basically purpose क्या है ये सब thought लाने का कि space को दूसरी चीजों से भी relate कर सकते हैं, है ना? To extend the parallel of physical space to our other experiences. यही है ना कि eventually किस तरीके से physical space को compare किया जा सकता है, let's say with teaching space, with job space, with family space. पढ़ के देखना, अगर गड़बड़ भी हुआ हो तो समझोगे. क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ए जो है मेंशन है, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग का रीजन नहीं है. मैं इतना समझा दे रहा हूं, अगर डाउट होगा फिर से पढ़ो, समझ में आएगा. क्वेश्चन ऑप्शन बी में एक्सक्लूसिवली वर्ड का कोई बेसिस नहीं है. एक्सक्लूसिव मतलब केवल उसी से होता है ना? ऐसे भी वो मेन पॉइंट नहीं है. डी करेक्ट है. इतना हिंट काफी होना चाहिए. किसी को अभी डाउट है रीडू करना पड़ेगा एंड देन गो थ्रू द आंसर्स, है ना? Question number 4. According to the author, again, देखो, according to the author, direct question. Silence must be a part of learning space because, okay, all right. Uh, According to the author, silence क्यों रहना चाहिए? ध्यान दो. अब गलत तो सी और डी भी नहीं है. ठीक, ये भी मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, लोग कंफ्यूज होते हैं. मैं एक बार बताऊंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड. दो लॉजिक है, समझो. पहला, साइलेंस के बारे में पूछ रहा है, नॉट स्पीकिंग, तो इसीलिए सी और डी आउट है. दूसरा लॉजिक समझो, अगर सी ट्रू है तो डी भी ट्रू है. अगर कोई कंफ्यूज हुआ होगा ना, रीड करना. ये बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक है, ऐसा कई जगह कैट में लगता है. ठीक है, ये तुमको ट्रेडिशनल इंग्लिश के टीचर्स नहीं बताएंगे, ये एकदम लॉजिकल कैट एस्पिरेंट वाला लॉजिक है. क्योंकि सी भी दिया है डी भी दिया है एक ही जगह में, दोनों ट्रू नहीं हो सकता. इसमें जो तुमको समझ में आया उस हिसाब से तुम एलिमिनेट कर सकते हो. ठीक है, बी में क्या प्रॉब्लम है बता रहा हूं. साइलेंट कॉन्टेम्पलेशन हेल्प्स अस टू कंस्ट्रक्ट अवर माइंड मेड वर्ल्ड. देख रहे हो, कंस्ट्रक्ट. ओके, यहाँ पे कुछ लिखा था, साइलेंट कॉन्टेम्पलेशन कहाँ गया? Wait, right. In silence more than arguments, our mind-made world falls away. देखो तो सिमिलर लग रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्ट की जगह फॉल्स अवे लिखा हुआ है, तो मतलब एकदम एग्जैक्टली उल्टा है. गेटिंग इट? तो ऑप्शन इसमें जो ये है ना, क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, इट इज अ रॉन्ग फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्शन है. इट्स अ रॉन्ग फैक्ट और कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग ऑथर्स नोशन ऑफ लर्निंग स्पेस कैन बी समराइज्ड एज, समरी है, ये भी डायरेक्टली होगा, है ना? ओके, लर्निंग अनलर्निंग नॉट मेंशन्ड, लर्निंग डिग्निटी एंडेवर, अरे आर्मी की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, नॉट मेंशन्ड. समझो. एनकरेज, एक तरह को एनकरेज करो, दूसरे को डिस्करेज करो, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो उल्टा कभी नहीं लिखा. इफेक्टिव लर्निंग रिकॉग्नाइजेस द वैल्यू ऑफ एम्पैथी. अगर एम्पैथी वर्ड का मीनिंग पता होगा ना तो इसमें कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि बाकी सब तो मेंशन ही नहीं है. देखो, अगर आप यहां पर जाओगे ना पैसेज में, फर्दर एक बार पढ़ोगे, है ना, तो कई जगह लिखा है ना कि लर्निंग को हॉस्पिटेबल बनाना चाहिए, राइट, एनकरेज करना चाहिए, हेल्प करने के लिए, लर्न करने के लिए. पैरा नंबर 1 और 2 में जाके पढ़ना. ठीक है, मतलब एम्पैथी का मतलब, अच्छा लिखो तो चैट में, एनीवन, कितने लोगों को पता है एम्पैथी का मतलब? राइट नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एम्पैथी? मीनिंग समझ लो तो पैरा 1 2 में जाओगे तो समझ में आएगा. बताओ व्हाट इज एम्पैथी?
बताओ यार, देख के बताओ नहीं तो। यस, करेक्ट सौरभ, वेरी क्लोज, करेक्ट श्रुति। दूसरे के तरीके से सोचना, टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, है ना। सो इफ यू गो टू पैरा 1 एंड 2 यू विल अंडरस्टैंड कि इनमें से एक ही जो है वो पैसेज के हिसाब से ट्रू है, ठीक है। ऑल राइट, नाउ आई विल गो टू पैसेज नंबर 2। गाइज आई विल रिपीट, अगर कहीं पे डाउट है रीडू करना पैसेज को, है ना, उसमें शर्माना नहीं है। तो बिफोर आई मूव टू पैसेज नंबर 2, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन टू एवरीबडी। कितने लोग को 5 आउट ऑफ 5 क्लियर हो गया? एक बार थम्स अप दो तो। मोर और लेस, थोड़ा मोड़ा लग रहा है तो देख लेने का, बट समझ रहे हो लॉजिक, हो रहा है काफी लोग को क्लियर। चलिए, गुड देन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना ये। किसी को किसी में भी डाउट हो रहा है, एक बार रीडू करने का है, ठीक है, डोंट वरी। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ गाइस, ओवर फोकस ऑन द सोल्यूशन ये नहीं करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द पैसेज। अगर आपका गलत होता है, 1-2 दिन का गैप करके रीडू करिए, क्योंकि जितना अभी बता रहे हैं ना उसके बियॉन्ड अगर हम ही बताएंगे ना तो फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि आप दिमाग लगाने को तैयार नहीं है। अगर आप उसमें दिमाग लगाने को तैयार नहीं है तो फिर आपकी लर्निंग नहीं है, मेरा ही फायदा हो रहा है ना। तो इसीलिए इसके बियॉन्ड अगर एंड होता है कई बार, मतलब आई वाज अ स्टूडेंट फ्यू इयर्स बैक, राइट, आई एग्जैक्टली नो व्हाट हैपेंस। कभी कभी क्या होता है ना, एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत डिस्कशन में फिर नहीं समझ में आता है, इसीलिए 1-2 दिन गैप करके रीडू करना चाहिए विद द आंसर, तब बेटर समझ में आता है ना। कितने लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 वाला समझ में आया, जो मैंने ऑप्शन सी और डी कहा कि दोनों दोनों सही साथ में नहीं हो सकता है? बहुत तगड़ा लॉजिक है ये, कई बार लगता है, देखोगे आगे चल के। कितने लोगों को ये अभी समझ में आ गया? आया काफी लोग को, वेरी गुड। दोनों ट्रू है देखो, है ना। तो ऐसे करके आप ऑप्शन छाट सकते हैं, है ना, ये इस तरीके से एलिमिनेशन यू नीड टू थिंक। गुड, नाइस। चलो लेट्स गो टू RC2। अगेन आदित्य, अभय, कोई भी एक जन थम्स अप दे दो तो। डॉक्यूमेंट विजिबल है आयुष, हमेशा। ओके, चलिए। In the 1960s, while studying the northern elephant seal population along the coasts of Mexico and California, some colleagues of Buoff noticed that threat calls of males at some sites sounded different from those of males at other sites. That was the first time dialects were documented in a non-human mammal. इसका क्या मतलब है? सील पॉपुलेशन में डायलेक्ट्स पाया गया पहली बार। व्हाट इज डायलेक्ट्स, इससे क्या समझ में आता है? डायलेक्ट मतलब आवाज में डिफरेंस, एक जगह के आवाज का डिफरेंस फ्रॉम दूसरी जगह का आवाज, दैट इज व्हाट डायलेक्ट का मतलब हुआ, ठीक है। ओके, पैरा नंबर 2, all the seals that exist today they come from a small island called IG, ठीक है। एक चीज और बताऊंगा, हमेशा कहता हूं मैं ये चीज, फिर ध्यान से सुनो सब कोई। जब भी इस तरह के वर्ड्स है ना, जैसे यहां पर क्या लिखा है, ये बंदे का नाम है बर्नी ली बोइस, एग्जाम में ये सब रीड करने में टाइम मत लगाना गाइस, टाइम चल जाता है। मैं तुरंत इसको ऐसे पढ़ता हूँ, मैक्सिकन कैलिफोर्निया BLF, खाली फर्स्ट लेटर्स पढ़ लो, इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम प्रोनाउंस करने में भी 2 सेकंड वेस्ट होता है। जैसे ईसा की वर्ड डालपिन, IG पढ़ लो। एक बार थम्स अप दोस्त, बात समझ में आ रही है ना? सेलेक्टिव रीडिंग करना होता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नेम या प्रॉपर नाउन है, जस्ट रीड द इनिशियल्स, डोंट इन्वेस्ट दैट एक्स्ट्रा 2-5 सेकंड बिकॉज नॉट गोइंग टू हेल्प, राइट। तो आगे पढ़ते हैं। ऑल द नॉर्दर्न एलिफेंट सील्स दैट एग्जिस्ट टुडे, ये लोग कहां से आए हैं भाई? IG आइलैंड से, ठीक है। ओके, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो किया, ये लोग रिकॉलोनाइज करने लगा फॉर्मर लोकेशंस को। ओके, तो एक्सटिंक्ट होने वाला था, एक जगह बचा, वहां से सब जगह जाने लगा। इन रिकॉलोनाइज्ड आइलैंड्स पे, है ना, फाउंडर कॉलोनी से बहुत ज्यादा डिफरेंसेस दिख रहे हैं आवाज का। डिफरेंट वोकल डिस्प्ले इन रिसेंटली कॉलोनाइज्ड आइलैंड्स, ठीक है। ये देखो सेंट्रल आइडिया है, मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं भाई। तो इन ऑर्डर टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ दिस चेंज, तो क्या हो रहा है, हुआ क्या है देखो। एक IG आइलैंड था जहां से सब इधर उधर स्पीशीज गया है सील्स का,
और उनका अलग अलग आइलैंड का अलग अलग डिस्प्ले आवाज का लेवल्स दिख रहा है ना। तो इसको फर्दर स्टडी किया गया एक एएन आइलैंड में। एएन आइलैंड में क्या हुआ भाई, मेल्स का पल्स रेट बहुत कम था। ओके, पर 4 साल तक लगातार स्टडी करने में पता चला कि पल्स रेट इंक्रीज किया, लेकिन फिर भी थोड़ा कम रहा। ओके, तो ये एएन आइलैंड मेन थीम क्या है इस तरह का, ओवर टाइम पल्स रेट इंक्रीज बट इट वाज स्टिल स्लो। ओके, at the individual level the pulse rate remains the same. ओके, इमिग्रेशन हुआ होगा, एवरेज चेंज कर रहा था, समझो इसको। किसी भी नया ये नए आइलैंड पे क्या हुआ ना, जो यहाँ पर जो लोग आए ना, जो भी सील्स उनका कम था, क्योंकि इंडिविजुअल का पल्स रेट लाइफ में चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, ओवर टाइम क्या हो रहा था कि पल्स रेट बढ़ रहा था आइलैंड का एवरेज, राइट। इसका मतलब बाहर से ज्यादा पल्स रेट वाले लोग आ रहे थे, ये समझना बहुत जरूरी है ना। had come from southern islands where there had faster pulse rate। तो इससे क्या डिड्यूस किया, बहुत साल तक जब आइसोलेशन था रिकॉलोनाइजेशन के बाद नए आइलैंड्स पे, तो पल्स रेट लो था, है ना। क्योंकि बाई चांस देखो ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेटलर्स ऑफ एन कुड हैव हैड बाई चांस लोअर पल्स रेट। जैसे जैसे इमिग्रेशन हुआ पल्स रेट बढ़ता गया, मतलब इंडिविजुअल का पल्स रेट चेंज नहीं हो रहा था, जिस तरह के इमिग्रेंट्स आए उस हिसाब से पल्स रेट का एवरेज हो रहा था। एक बार थम्स अप दे दो अगर ये समझ गए, मुझे फर्स्ट रीडिंग में आसानी से समझ में नहीं आया था ये, अभी समझ में आ रहा है तो बहुत सही लगेगा ये। आर यू गेटिंग इट? देखो, आईजी आइलैंड से सारे इमिग्रेट करके सील्स अलग अलग आइलैंड पे गए, ठीक। अलग अलग आइलैंड पे कहीं पर स्लो पल्स रेट वाले गए, कहीं फास्ट वाले, क्योंकि इंडिविजुअल का तो अलग अलग था पल्स रेट। जहां ज्यादा स्लो वाले चले गए ना, वहां शुरू में पल्स रेट स्लो दिखता था, फिर लेकिन किसी भी इंडिविजुअल का पल्स रेट चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, उन आइलैंड्स में ओवर टाइम पल्स रेट एवरेज होते गया, बढ़ते गया। कैसे भाई, क्योंकि दूसरी जगह से फास्टर वाले वहां आए तो हुआ, मतलब पल्स रेट क्यों चेंज हो रहा था एवरेज, बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन। गॉट द पॉइंट? ओके, आगे देखते हैं। As the population continued to expand and immigrants kept coming, eventually pulse rate average कर लिया, है ना। एंड ये देखो इंपॉर्टेंट है, geographical variations reported in 1969 were not obvious anymore। गॉट इट? अब उतना वेरिएशन नहीं रहा। ये हम लोग 1960-70 से 2010 में आ गए फाइनली, है ना। अब यहाँ पर देखोगे, है ना, तो पल्स रेट का वेरिएशन है ही नहीं। ध्यान से पढ़ना फिर से तो समझ में आ जाएगा। डायलेक्ट्स हैड वैनिश्ड, अब कोई पल्स रेट वेरिएशन नहीं है। क्यों? अरे ओवर टाइम इमिग्रेशन होते होते सब जगह बैलेंस कर गया ना, यहाँ से वहां सील्स इमिग्रेट किए, ठीक। लेकिन कुछ और डिफरेंसेस हैं, ज्यादा इंडिविजुअल डाइवर्सिटी है और कॉल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स। अब मॉडर्न सील्स में उनका पैटर्न ऑफ कॉल्स डिफरेंट है। तो व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द लास्ट का पैराग्राफ? Geographical variations have vanished, individual diversity has become more complex। ठीक है, now guys we will go to the questions, but before I go there, I'll again take a 1 minute pause। uh, See, I always think that I am a cat aspirant। तो मैं एकदम वही ऑनेस्ट चीज शेयर करता हूँ, पहली रीडिंग में मुझे नहीं ये फ्लो पकड़ा है। कितने लोग को अभी अभी एकदम क्लियर हो गया? एक बार फिर पढ़ोगे घर पे, कितने लोग को लग रहा है कि हाँ समझ में आ गया, ओके ये हुआ? तो फ्लो पकड़ना बहुत जरूरी है। एक बार थम्स अप दो इफ यू आर क्लियर नाउ। अंडरस्टैंड व्हाट एवरी पैराग्राफ इज ट्राइंग टू डू। इफ यू डू दैट वेल, राइट, आपका क्वेश्चन आंसरिंग बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज इजी हो जाते हैं। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स गो बैक एंड गेट द आंसर्स। इतना समझ जाने के बाद आंसर्स ट्रिकी नहीं है। ओवरऑल हिस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, आई जस्ट रन थ्रू क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। समरी बताना है इन सील्स के कॉल्स का। किस चीज का? सील्स के कॉल्स का। ओके, ऑप्शन ए, एवरेज पल्स रेट्स कंटिन्यू टू ग्रो ओवर टाइम। देखो, दिस इज पार्ट नॉट होल। व्हाट इज पार्ट नॉट होल? देख, आई एम लेबलिंग इट हियर ना। पार्ट नॉट होल का मतलब है ये करेक्ट बता रहा है लेकिन ओवरऑल पूछ रहा है। ठीक है, बी देखो, कॉल्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम सिंपल कॉम्पोजिशन से अब कॉम्प्लेक्स। ओके, हाँ ये बोला है फाइनल में, सिंपल से क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स, राइट। ओके, लेस इंडिविजुअल वैरायटी से ग्रेट इंडिविजुअल वैरायटी, ये भी बोल रहा है।
पहले रीजनल ज्यादा था वैरायटी, अब लेस रीजनल वैरायटी। तो ये गिवन है, लास्ट पैराग्राफ पढ़ के देखोगे, सब में बाकी दोनों ऑप्शन में गलत है। बाकी में क्या बोल रहा है, ग्रेट रीजनल वैरायटी, लास्ट लास्ट में ग्रेट थोड़ी था यार, रीजनल वैरायटी तो कम हो गया था ना, डायलेक्ट्स हैव वैनिश्ड बोल रहा था ना, समझे? तो बस इतना सोचना है। तो वन इज पार्ट नॉट होल, टू इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, है ना, इसीलिए बेस्ट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन बेस्ट पूछ रहा है, समझो, ठीक है। और थ्री और फोर तो रॉन्ग है, थ्री और फोर में पैराग्राफ के हिसाब से रॉन्ग है। अब इसमें अगर डाउट आ रहा है, आपको एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा लास्ट पैराग्राफ जाके कि कंक्लूजन क्या किया है ना। ये तीन वर्ड्स, ये ना, लेस, ग्रेट, मोर कॉम्प्लेक्स, ये पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो एक बार मैं पिंग कर देता हूं चैट में, इसमें वन का आंसर इज ऑप्शन टू। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, how were dialects recognized? There's a typo here. How were dialects, दो बार वर्ड नहीं होगा, recognized in North American elephant seals in the first place? In the first place बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पहली बार कैसे, कब डायलेक्ट्स का पता चला था? आंसर इज थ्री। क्यों? सिंपल टाइमलाइन देख लो यार, देखो, ये 1970, देखो, नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहला बार का डिस्कशन नहीं है, ऑप्शन वन, ठीक है। ये इंक्रीज डिक्रीज, अगेन नॉट द फर्स्ट टाइम, पहला पैराग्राफ जाके देख लेना, ये थ्री जो है वो फर्स्ट टाइम है, ठीक है। फोर, जोग्राफिकल डायलेक्ट स्टिल एग्जिस्टेड, ये तो रॉन्ग है, यहाँ पे तो लिखा था वैनिश 2010 में, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो टू का आंसर इज थ्री। एक बार थम्स अप दो, दोनों क्वेश्चन समझ में आया? हल्का फुल्का डाउट है रीड करने का, एक दिन गैप करके, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस यही होते हैं, थीम बेस्ड रीडिंग करोगे गाइस। आई रिपीट इवन इफ इट साउंड्स रिपीटेटिव, बिकॉज आरसी इज नॉट अबाउट लर्निंग फॉर्मूलाज, है ना। रिमेंबर, थीम बेस्ड रीडिंग एंड वर्ड लर्निंग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते जाओ ऑन अ डेली रीडिंग बेसिस, है ना। आरसी इज वेरी स्कोरिंग, आर स्टूडेंट्स सक्सीड अ लॉट ऑन आरसी, you have to do it too, ठीक है। all you need to do is make sure कि every day कम से कम 10 20 30 minutes थीम बेस्ड रीडिंग, वर्ड लर्निंग, रीडिंग बेस्ड ही, है ना, आप कर रहे हो as far as possible. Alright, so I'll share this file with you as well. I hope you enjoyed. एक राउंड थम्स अप और स्माइल्स हो जाए लास्ट में, अगर मजा आया with the Sunday practice. We'll see you again in class next week. Thank you. Have a great Sunday. Bye bye.